Greetings to all those who are watching this video. I have brought another practice paper for class 11th chemistry. So there are 5 sections in the paper, as you all know. Section A has MCQs including 4 assertion reason questions. Section B has 5 short answer type questions carrying 2 marks each. Very short answer type VSA. And section C has 7 short answer type questions, 3 marks for each question. And in section D, there are 2 case-based questions, 4 marks for each. And the last section is section E, containing 3 long answer questions, and each question has 5 marks. Log tables are not allowed, calculators are not allowed, and you have to attempt all the questions. Wherever you have internal choice, that you can consider. Otherwise, all 33 questions are to be attempted. So let's start with section A. First question, MCQ है इसमें. I'll just go back. Yes. So the first question is, choose the compound for which formula mass term is used. Formula mass term use होता है ionic compounds के लिए, and you can see that here only NaCl is the ionic compound. All others come in the category of covalent compounds. So my answer is D. This formula mass, molecular mass, these terms you have done. It's from NCERT. The whole paper is from NCERT directly every year. 11th may be, 12th CBSE may be. For chemistry, I keep on repeating, NCERT thoroughly करेंगे तो it will help you in the competitive exams also. Second question is, select the pair of orbitals with correct energy order. As you can see here, 4s greater than 4p. How will we solve this? We have to consider n plus l. Principal quantum number plus azimuthal quantum number. So here you can see that 4s, that means 4 plus 0, and 4p, 4 plus 1. So this is wrong order. This is not my answer. 3d and 4s if I see. So for 3d, n is 3 and l is 2. So it becomes 5. For D, L is 0, 1, 2, SPD. So L क्या हुआ? 2 हुआ, total is 5. And for this it is 4 plus 0, that is 4. So higher the value of n plus L, more is the energy. So B is the correct option. Now we don't have to look at C and D, but there is no harm in discussing. There is only one correct answer. तो ये भी देख लेते हैं. 1s में it is 1 plus 0 and it is 2 plus 0, wrong order. 2s की एनर्जी ज़्यादा होती है 1s से. Same way 4d and 5p also you can compare. 4d is 4 plus 2. 0, 1, 2, right. 4 plus 2, 6, and it will be 5 plus 1, 6. So they are equal in energy, right? That's why answer is B. Third question is, recognize the reducing agent. तो आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है. एंड फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट योर आंसर विल कम फ्रॉम द रिएक्टेंट ओनली. तो आपको इन दोनों में से आंसर मिलेगा. सो बाय एलिमिनेशन आप 2 चॉइस तो हटा सकते हो, राइट. सो Cr2O3 इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Cr. तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन में हेल्प कौन कर रहा है? Al. हाउ? Because Al is converting to Al2O3. So it is itself getting oxidized. That is how it is helping in the reduction of Cr2O3. तो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो खुद रिड्यूस हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. सो हियर द आंसर इज Al. Al इज द रिड्यूसिंग एजेंट. इसको रिडक्टेंट भी बोलते हैं. दैट टर्म इज ऑल्सो यूज्ड. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. Identify the volumes of ammonia vapor that would be produced if 10 volumes of dinitrogen gas reacts with 30 volumes of dihydrogen gas. ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? यू हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. N2 plus 3H2 gives 2NH3. Now they all are gases. Gay-Lussac's law of gaseous volumes we will consider here. तो इसमें आप देख रहे हैं कि the
ratio is 1:3 and you are getting 2 moles. So same ratio will apply here. You have 10 volumes of dinitrogen gas. 10 volumes, if I consider 10 here. 10 volumes of dinitrogen reacting with 30 volumes. Easy question है, यही ratio है. And I will get 20 volumes then. So if you have 20 in the question, that is your answer. Easy. Okay. Let's go to question number 5. Which of the following compounds is non-aromatic? Now for aromatic compounds, there are 3 conditions which are to be satisfied. 3 conditions. There should be planarity in the molecule, planar होना चाहिए. दूसरी condition क्या है कि there should be complete delocalization of pi electrons. And third is Huckel's rule, 4n plus 2 pi rule. So if you apply that to all of them, A, B, C, D, here you will notice that this carbon is sp3 hybridized. अब sp3 hybridized carbon, the geometry should be tetrahedral. तो tetrahedral तो planar नहीं हो सकता. So obviously this is my answer. And if you have these 4 sp2, but here this is sp3, तो delocalization भी नहीं होगा, planarity भी नहीं है. So that is why even if one condition is not satisfied out of 3, एक भी satisfy नहीं होगी 3 में से, तो वो एरोमेटिक की कैटेगरी में नहीं आएगा. इसमें तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रही. हक्कल्स रूल भी नहीं, प्लेनैरिटी भी नहीं, एंड द delocalization is also not complete delocalization. Whereas in all the other 3 options, A, C and D, these 3 conditions are satisfied. So non-aromatic है B part. Question number 6. Assess the organic compound with molecular formula C3H8O. To select the correct option with the different types of isomerism which it can show. So if there is one oxygen, I can think of maybe alcohol. ये alcohol possible है क्या? देखते हैं. CH3, CH2, CH2. Suppose मैं simple वाला भी लिखती हूँ. OH. Is it C3H8O? Yes, it is. तो ये possible है. Now what type of isomerism is possible here? This OH can be placed on second carbon. प्रोपेन 1 ऑल है, ये प्रोपेन 2 ऑल भी पॉसिबल है. ऐसे वाले आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट पोजीशन आइसोमेरिज्म. तो अगर आप आंसर देखेंगे, ABCD ऑप्शंस देखेंगे, तो पोजीशन आपके 2 आंसर्स में आ रहा है. इन दोनों में से मेरा एक आंसर होना चाहिए. नाउ आई विल सी विद सिंगल O what other functional group is possible. So if I try CH3O, CH2, CH3. If I try this, तो यहाँ पे this ether ROR, this is also possible, same formula. Molecular formula is same. So this is alcoholic functional group, this is having ether in it. तो इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. सो दैट मीन्स A पार्ट इज करेक्ट. अब यहाँ पे बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे? They will see metamerism. The moment this comes, metamerism comes into picture. But metamerism तब होगा when you have one more carbon. अगर आपके पास एक साइड 2 कार्बन है, एक साइड 1 कार्बन है, आप एक्सचेंज भी कर दोगे तब भी वही रहेगा, एक साइड 2 और एक साइड 1 कार्बन. इफ आई हैव वन मोर कार्बन देन आई कैन थिंक ऑफ मेटामेरिज्म. ये एक में एक साइड 1 और एक साइड 3 कार्बन आ गए और नेक्स्ट वाले में दोनों साइड 2 आ गए. तो यहाँ मेटामेरिज्म नहीं है. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म इज देयर. आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स करने चाहिए, जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स मिलें, इन द लिमिटेड टाइम. व्हाट आई मीन, 3 आवर्स का आपका पेपर होता है, तो आप जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने लिए 2.5 आवर्स ही रखिए. एंड देन यू सी योर परफॉर्मेंस इम्प्रूविंग डे बाय डे. और आप कोई भी पेपर करके उसके आंसर जब चेक करते हो, एट दैट टाइम ऑल्सो यू आर गोइंग टू NCERT, रीडिंग द टेक्स्ट. तो बहुत सारी चीज़ें साइड बाय साइड रिवाइज होती हैं. तो एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले द बेस्ट थिंग इज़ टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस
sample papers. That is why I am discussing this to send you in time. Okay. 7th question. Which of the following reagents act as self-indicator in redox titrations? ये वाली titration 12th में तो आप lab में भी करेंगे. यहाँ पे MnO4 minus is the answer. ये redox chapter में there is a paragraph जिसमें ये डिस्कस किया हुआ है कि MnO4 minus is dark pink purplish in color and in acidic medium it changes to Mn2 plus titration करते हैं तब, and this is colorless. तो पिंक से कलरलेस हो जाता है एसिडिक मीडियम में, तो वो खुद ही इंडिकेट कर देता है दैट द रिएक्शन इज कंप्लीट. दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट सेल्फ इंडिकेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स and select the one having a strongly deactivating group attached to benzene. Deactivating का मतलब होता है -R जो शो करता है. Resonance where the group is able to withdraw electrons from benzene ring. And here in the attachments you will notice that C double bond O is attached to the carbon of benzene. So what will happen? This will take away electron density. In turn this will shift here. So this comes in the category of deactivating group जो negative R effect show करेगा. It will take away electron density from benzene. So here my answer is C. In other cases R groups are considered electron donating. अभी पीछे एक बारी न्यूज़पेपर में आया था, हो गया थोड़ा टाइम, उसमें लिखा हुआ था द रिसर्च इज गोइंग ऑन. वो बोल रहे हैं कि एल्काइल ग्रुप्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बट अभी तक ऐसा कुछ प्रूव होके मेजर चेंजेस आए नहीं हैं. तो अभी के लिए तो यही है कि आर ग्रुप प्लस आर शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है रेजोनेंस में. यहाँ पे लोन पेयर है, ये भी वही करेगा. यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, आपको देख के लग सकता है कि क्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, बट ऐसा नहीं है. 12th में देर इज़ अ रीजनिंग क्वेश्चन जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है कि इफ़ यू सी द रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो हमेशा मेटा पोजीशन पे जाता है इलेक्ट्रोफाइल. बट ये आप इसका रिएक्शन करवाएंगे व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन इट तो हमेशा ऑर्थोपैरा पे आएगा. तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे कि ऑर्थोपैरा पे आएगा इन द मैकेनिज्म देयर इज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन ऑल्सो. अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज होगा, ये भी 11th में नहीं है इतना एक्सप्लेनेशन, बट मैं आपको रीज़न दे रही हूँ दैट वाई Cl इज़ नॉट शोइंग द डीएक्टिवेटिंग एक्शन. वो एक्टिवेटिंग ही करेगा एक्शन, क्योंकि ये तभी स्टेबलाइज होगा जब ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे शिफ्ट करे, डोनेट करे, और ये ऐसा कर रहा है ओनली देन वी आर गेटिंग ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स, अदरवाइज तो वो बनते ही नहीं. सो दैट इज़ वाई हेलोजेंस NH2 CH3 दे ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो प्लस आर शो करते हैं. दैट इज़ वाई C इज़ द आंसर विच इज़ द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हियर. इसकी जगह CHO भी हो सकता था, उसमें भी यही है. यू हैव टू सी द कार्बन ऑफ बेंजीन और वो किससे अटैच्ड है. अगर यहाँ ऑक्सीजन है तो इट विल डेफिनेटली पुल अवे इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स पुल होंगे. दिस इज़ हाउ वी डिसाइड एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. इसके लिए थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में एक टेबल दिया हुआ है, वहाँ से ये एक केस उठाया है. प्रेडिक्ट द करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज दैट रिप्रेजेंट अ नॉन स्पॉन्टेनियस. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. कई बार हम बहुत हरिडली पढ़ते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते, तो क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस ही पूछा होगा, डेल्टा जी नेगेटिव पूछा है, नहीं, दिस इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस. तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है विच विल गिव यू डेल्टा जी पॉजिटिव, एंड डेल्टा जी इज़ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे डेल्टा जी पॉजिटिव चाहिए. क्यों चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है नॉन स्पॉन्टेनियस. डेल्टा जी अगर ज़ीरो है तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट है, चेंज ही नहीं आ रहा कुछ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी में. इफ़ डेल्टा जी इज़ नेगेटिव देन स्पॉन्टेनियस, बट हमसे क्या पूछा हुआ है, स्पॉन्टेनियस नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा है. सो आई नीड इट पॉजिटिव. तो वैल्यूज़ यहाँ पे जो साइंस हैं वो लगा के यहाँ पे यू कैन सी, अगर ये पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, एक नेगेटिव यहाँ है बीच में फॉर्मूला में, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा. तो फर्स्ट ही हो गया आपका आंसर, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है.
ओनली वन इज़ करेक्ट. और कभी ऐसा हो भी जाए 11th के एग्ज़ाम में, स्पेशली बोर्ड से जहाँ पे आता है 12th का CBSE का, कि कोई मिस्टेक है, एक से ज़्यादा करेक्ट हैं, तो एडवांटेज स्टूडेंट्स को ही मिलता है. इतने बड़े लेवल पे करेक्शन तो हो नहीं सकती है इंस्टेंटली. तो अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है या कुछ है तो आप अपना आंसर लिख के आइए करेक्ट. और आपको लग रहा है वहाँ मिस्टेक है तो आप वो भी नोट लिख सकते हैं साइड में कि आई थिंक देर इज़ अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन, बट यू हैव टू बी श्योर अबाउट द मिस्टेक. ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में ऐसी कुछ भी लिख के आ गए. जेन्युइनली गलत होगा तो यू विल गेट एडवांटेज. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. Aniline is steam volatile, okay, and immiscible with water. Recognize the apt technique that may be used for its purification. जो steam volatile है और उसके बाद जब आप उसको कंडेंस करेंगे तो दो लेयर्स बनेंगी, एक पानी की और एक एनिलीन की. दे आर नॉट मिक्सिंग. सो दैट इज़ द एडवांटेज कि हम आराम से उसको सेपरेटिंग फनल में डाल के डिकेंट करके वी कैन सेपरेट देम. तो ये क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिख रहा होगा. एक्चुअली तो स्टीम डिस्टिलेशन इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. द वैल्यू ऑफ Kc for a reaction is this. Identify the value of Qc so that the reaction goes in backward direction. कब जाएगा backward direction में? When Qc is greater than Kc. अगर इसका उल्टा होता है Kc इज़ ग्रेटर देन Qc तो फॉरवर्ड में जाता है. तो मुझे ऑप्शंस में से कंपेयर करना है दिस क्वांटिटी विद दीज क्वांटिटीज, इन विच केस आई एम गेटिंग द हायर वैल्यू ऑफ Q. तो आप कंपेयर करोगे तो फर्स्ट वाला है 0.2 10 की पावर -3. इट बिकम्स 2 इंटू 10 की पावर -4. तो इससे कंपेयर करोगे तो वैल्यू छोटी है ये. देन यू गो टू बी पार्ट. 1.5 10 की पावर -4 डायरेक्टली यू कैन कंपेयर इट्स स्मॉलर वैल्यू, लेसर वैल्यू देन द Kc वैल्यू. देन यू कम टू सी पार्ट. 3 इंटू 10 की पावर -4 दे आर इक्वल. जब इक्वल होता है तो इक्विलिब्रियम आ गया होता है. नाउ ओनली दिस इज लेफ्ट एंड यू कैन क्लियरली सी 10 की पावर -3 है एंड 4.5 है. सो द वैल्यू इज ऑब्वियसली हायर देन K. सो D इज माई आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. इसके बाद आपके 4 असर्शन रीज़न हैं. सेक्शन ए विल बी कंप्लीट. व्हेन आई एम डिस्कसिंग, फ़ायदा ये होता है क्वेश्चन को डिस्कस करने का कि आप उसके आसपास की कुछ चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हो. दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग. बट स्टिल व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग हियर और व्हेन यू आर रीडिंग एनीथिंग और आपको कुछ याद ना आए वाइल रिवाइजिंग, you can always go back to your NCERT and do that small portion again quickly, then come back to the paper. There is no harm and you will definitely do very very well. Chemistry is very scoring if you do it this way. Question number 12. Deduce the structure of, आपको इस चार में से चूज करना है प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर which is formed by passing an unsaturated hydrocarbon that was derived by dehydrohalogenation of 1,2-dibromo ethane ब्रोमो एंड ब्रोमो 1,2-डाइब्रोमो. ठीक है, अब इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाऊँ और ये सब करूँ उससे पहले मैंने क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा ही नहीं. क्वेश्चन में लिखा है थ्रू अ रेड हॉट आयरन ट्यूब. इसी से याद आ जाना चाहिए. जब आप इथाइन को पास करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब से बेंजीन बनता है. तो इसके डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से क्या मुझे इथाइन मिल रहा है? एक बार ही करवाया, यू आर गेटिंग अ डबल बॉन्ड. एक बार और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ, यस आई एम गेटिंग इथाइन. सो दिस इज़ माई आंसर. क्लियर? ये आपको लिख के दिखाना नहीं है, मैंने लिखा जस्ट टू रिवाइज विद यू. सो दिस इज़ हाउ वी डू इट. आपको रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन पढ़ के ही याद आ जाएगा इथाइन, एंड देन इथाइन से बनता है बेंजीन. सो द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू मे और मे नॉट यूज, बट रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. नाउ असर्शन रीजन. There are two statements. You have to read them and see if both are true and correct explanation is there. If both are true but they are not related as the statement and explanation, A is true, R is false, A is false, R is true. ये वाले चार में से आपको एक चूज करना है. So here the 19th electron in potassium atom enters 4s orbital, not 3d orbital. अगर आप इसका configuration लिखते हैं, जैसे आप
लिखते थे 2881 KLMN की फॉर्म में. अभी आप 1:2:2 2p6 करके लिखेंगे तो भी वो 4s1 में जाता है. करेक्ट. एंड द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ n+l रूल. दोनों ही ठीक हैं, बट इसने ये एक्सप्लेन डायरेक्टली नहीं किया दैट दिस इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन कि वो 3D में नहीं जा रहा, 4s में ही क्यों जा रहा है. हम कंपेयर तो कर रहे हैं एनर्जीज, बट विच इज़ ऑफ हायर एनर्जी, वो सब कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो बी इज़ द आंसर हियर. Okay, the next question is 14th. Assertion is Al3 plus and Mg2 plus are isoelectronic. Isoelectronic होते हैं, iso means same. So species which have exactly same number of electron उनको बोलते हैं isoelectronic. तो अगर आप इसमें देखेंगे तो 10 electrons हैं और इसमें भी 10 electrons हैं. But do they have same size? No, obviously not. इसमें 13 प्रोटॉन है, इसमें 12 प्रोटॉन है, तो 13 प्रोटॉन का ज़्यादा अट्रैक्शन होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो Al3+ का साइज़ छोटा होता है. तो मुझे नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, तो बिकॉज इफ़ आई गो बैक एंड शो यू द ऑप्शंस, तो उसमें वो क्या ऑप्शन है, A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू. दिस इज़ द ऑप्शन. तो इफ़ यू सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज़ फॉल्स क्योंकि साइज़ आ गया वहाँ पे. So that is why my answer is D. Question number 15. If a volume is kept constant, if the volume is kept constant and an inert gas such as argon is added which does not take part in the reaction, the equilibrium remains undisturbed. Correct है statement तो. If you add small amount of inert gas, obviously it is not going to affect वॉल्यूम कांस्टेंट रख के. बहुत ज़्यादा कोई गैस इंट्रोड्यूस कर देंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा एंड अकॉर्डिंगली चेंजेस आते हैं. बट इफ़ यू गो बाय NCERT तो वो कंसीडर कर रहे हैं एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट. सो इन दैट केस obviously equilibrium remains undisturbed largely, and it is because the addition of inert gas at constant volume does not change the partial pressure or the molar concentrations of the substance involved in the reaction. So as per NCERT, correct explanation of assertion, that is why I am giving it A. Now hyperconjugation may also be regarded as no bond resonance. Yes, this term is used for hyperconjugation, but it is not a temporary effect. Temporary effect आपका hyperconjugation नहीं होता. It doesn't come in that category. There are 4 effects जो आपने पढ़े हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर इफेक्ट है जो टेम्प्ररी की कैटेगरी में आता है. सो यू हैव इंडक्टिव इफेक्ट, यू हैव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यू हैव रेजोनेंस देयर एंड यू हैव हाइपर कॉन्जुगेशन. तो इन चारों में से एक ही है जो टेम्प्ररी की कैटेगरी में आएगा. आई वुड लाइक यू टू गो बैक टू NCERT and find out that right now, abhi ke abhi, so that you have a look at all the 4 effects quickly, and that is how you revise. Okay, so hyperconjugation is definitely called no bond resonance, but ये temporary effect नहीं है. तो option कौन सा हुआ? A is true but R is false, so C. So this completes section A of the paper. Now I'll come very soon with the section B, जिसमें आपको 2 markers मिलेंगे. So see you in the next video. It will be very soon that I will be sharing the video with you. I hope it helps you. Thank you.